Before proceeding further, let us have a brief review what we have discussed in the previous two lectures. We are mainly concerned about the magnetism that is generated due to the nucleus. On what factors it is dependent? It is depending upon the spin motion of the nucleons, particularly when they are charged. When they are not charged like neutrons, then even they are contributing for the spin, because total spin of the nucleus, it is added sum of the spin of the protons as well as spin of the neutrons. How spin is governed? It is governed by, in the quantum mechanics, by spin quantum number that is related to the spin angular momentum. Momentum means mass into velocity. When angular means it is moving in a circular path, what is the radius? Multiply that radius with the mass into velocity, m into v into r, that is the angular momentum. So related with the spin, that is why spin angular momentum. The spinning body is a charged body and it is generating a electrical current via the spin motion. Then it is also generating the magnetism, because whenever current is there, then automatically magnetic field is also associated with the electric field. What is the strength of that magnetic field? We have come to know by the previous discussion that 1 to 5 Tesla value is for the magnetic field that is being created, or that is due to the nucleon is there. How this magnetic field of the nucleus, it is interacting with the outer magnetic field applied one, that is the main concern, or that is related with the nuclear magnetic resonance spectroscopy. Main concern is about the interaction of the two magnetic field. Why we are so interested in that? Because it is not a simple magnet, just like the child play, one magnet is there, another magnet is there, one magnet is repelling the another magnet, or one magnet is attracting the another magnet. It is not just like so, because the particular magnetic field that is due to the nucleus is there, that is having the particular direction, and apply, it is not always along the applied मैग्नेटिक फील्ड. जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन और होगी, और जो न्यूक्लियॉन्स की वजह से मैग्नेटिज्म है उसकी डायरेक्शन जो वो डिफर कर रही है. हमेशा जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ही होता है. व्हाट इज द रीजन रिगार्डिंग दैट? इट इज बिकॉज ऑफ द स्पिन मोशन एज वेल एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम. That particular value of I, if it equal to 1, then spin angular momentum will be under root 2. The direction of the spin angular momentum and magnetic moment, they are similar one, as in the previous relations or previous discussions we have discussed. तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी हमेशा वैल्यू इंटीग्रल हो सकती है, लेकिन कभी भी स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो आर्बिट्रेरी वैल्यू जो है वो नहीं असाइन हो सकती है. उसको हमेशा प्लस आई से माइनस आई की वैल्यू जो है वही असाइन होंगी. जैसे आई इक्वल टू 1 है तो +1 to -1 क्रॉसिंग द 0. सो वन वैल्यू विल बी +1, अनदर विल बी 0, अनदर विल बी -1. अगर वो हाफ है देन इट विल बी +½ एंड -½. सो वेन एवर इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन दैट is either aligning along the applied magnetic field or it is opposing the applied magnetic field. These are the two spin states which are described by the two energy levels. Which is being opposed, that energy level is higher, and which is aligned state, that energy level is low. अब बात आती है कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं और न्यूक्लियॉन्स के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, we can say all the atoms they are the tiny magnets. तो जैसे एक मैग्नेट के नजदीक अगर हम आयरन के पीसीज ले जाएं तो सारे के सारे आयरन के पीसीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. मींस वट एवर इज द मैग्नेटिज्म इज देयर,
of the particular iron, because there are the domains, magnetic domains होती हैं आयरन के पीस में, तो डोमेन्स एकदम क्या हो जाती हैं, मैग्नेट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड हो जाएंगी. तो क्या सारे के सारे एटम जो वो अलाइंड नहीं हो सकते हैं? ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है ऐसा? इट इज बिकॉज ऑफ द थर्मल मोशन, और इट इज बिकॉज ऑफ द सम अनदर energies that are related with the nucleus or neutron and protons, because they are not only spinning, they are also into the motion. So due to the thermal agitations, not all are inclined along the applied magnetic field, but some they are opposing the applied magnetic field. So what is the population of the energy levels that we can discuss with the help of the this Maxwell-Boltzmann distribution. A simple form of Maxwell-Boltzmann distribution is written here, that population of the energy level, कि एक ग्राउंड स्टेट है और एक हायर स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट और हायर स्टेट में कितने एटम्स हैं उनकी रेशियो क्या होगी, दैट इज n अपर डिवाइडेड बाय n लोअर. नंबर ऑफ द एटम्स और न्यूक्लियस they are lying in the excited state, and number of the nucleus that are lying in the ground state. It is governed by the relation E equal to minus delta E upon kT. K is Boltzmann constant, T is the temperature, and delta E, it is the separation or gap between the upper level and the lower level. Here upper and lower level means one aligned state is the lower level, and which is opposing state to the applied magnetic field, that is the upper state. If you substitute the values, जो एटॉमिक स्केल है, एटॉमिक स्केल में डेल्टा ई की जो वैल्यू है बाय द चेंज ऑफ स्पिन, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7 into 10⁻26 जूल, एंड वी आर टेकिंग एन इंटरमीडिएट फील्ड हेयर दैट इज 2.348. के वैल्यू आपके सामने है यहां पर. सपोज एट टेम्परेचर 300 Kelvin we are calculating this factor. So after substituting the all values, you will come across that n upper divided by n lower, it is equal to 1 minus 1 into 10 raised to power minus 5. 10 raised to power minus 5 बहुत ही छोटी जो है वो नंबर, छोटा नंबर है, तो जब इसको 1 से लेस करोगे इट इज नियरली इक्वल टू द 1. यहां वैसे तो सारी वैल्यू आपको बुक्स में मिल जाएंगी. इंटरमीडिएट फील्ड जो है 2.348 ले रखा है, जबकि मैंने रिपीटेडली बात की है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 to 5 टेस्ला. तो पर्टिकुलरली हमने 2.348 क्यों ले रखा है? ये केवल कैंसलेशन के लिए ले रखा है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो. अगर आपको लेना है तो यहां 1 टेस्ला भी ले सकते हो, यहां 1.5 टेस्ला भी ले सकते हो, यहां पर आप जो है वो 5 टेस्ला भी ले सकते हो. लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो वैल्यू कितनी ले रखी है 2.348, पहले भी मैंने कैलकुलेशन में यही वैल्यू जो है वो यूटिलाइज की है. इफ यू डू ऑल द कैलकुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सो हियर यू आर गेटिंग ए एक्सपोनेंशियल, दिस वन एक्सपोनेंशियल, सो इट इज e raised power minus x. जब आप इसको एक्सपेंड करोगे e raised power minus x को, देन दैट इज 1 minus it is this x, whatever it is, 1 into 10⁻⁵ divided by 1 factorial, then x minus x square divided by 2 factorial minus x cube divided by 3 factorial. इस तरह से जो आपके पास इक्वेशन आएगी. तो 1 factorial कुछ भी नहीं होना था, 1 ही आना था, इसलिए उसको मैंने यहां पर लिखा नहीं है. सो बाकी टर्म्स मैंने नेग्लेक्ट कर दी हैं, बिकॉज दैट इज ए वेरी माइन्यूट टर्म. जब आप उसका क्यूब और उसका 4 रूट लोगे तो बहुत कम होगा, तो इसीलिए इसका मैंने जो सिंगल रूट 1 minus x ले रखा है यहां पर. इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, देन यू विल फाइंड दैट n upper divided by n lower it equal to 1 minus 0.0001. तो देखो 1 से कितना की फैक्टर लेस हो रहा है, तो इट दैट इज नियरली इक्वल टू 1. इसका मतलब जब भी किसी सैंपल को आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, सैंपल मीन्स सम केमिकल, देन वट एवर द न्यूक्लियाई प्रेजेंट देयर, देन अपर एक्साइटेड स्टेट एज वेल एज लोअर स्टेट दैट इज इक्वली पॉपुलेटेड. क्या होगी वो? इक्वली पॉपुलेटेड.
ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे एटम जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड हो जाएंगे। उसमें कुछ जो है वो अपोजिंग में होंगे और कुछ जो है वो किस में आएंगे, अलाइंड स्टेट में आएंगे। क्या टोटली इक्वल होगा? नहीं, टोटली इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहां मैंने क्या लिया है, नियरली इक्वल टू लिया है। हो सकता है कि ये वैल्यू 0.99 आए, यानी 90% आए, तो नीचे अगर 100 है तो ऊपर जो है वो अपर स्टेट में 90 न्यूक्लियाई हो सकते हैं, या नीचे 1000 है तो ऊपर 990 या मतलब 90% के करीब जो है वो अपर जो स्टेट होगा वो पॉपुलेटेड होगा विच स्टेट, विच इज द अपोजिंग वन। और जो अलाइंड है उसमें जो पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी। इट मींस ग्राउंड स्टेट थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलेटेड होगी और अपर स्टेट जो है वो थोड़ी कम पॉपुलेटेड होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट इज लार्मर प्रिसेशन। What is the Larmor precession? Here there is a definition of the Larmor precession that I have written down here. जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है, स्पिन कर रही है और किसी एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही है, तो उसकी स्पिनिंग के साथ साथ अगर उसकी एक्सिस भी किसी और एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही हो तो उसको हम प्रिसेशनल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रिसेशनल मोशन। सम स्पिनिंग बॉडी इज देयर, बॉडी स्पिन कर रही है और वो जिस एक्सिस पे स्पिन कर रही है वो एक्सिस भी जो है वो किसी और एक्सिस के अराउंड जो रोटेट कर रही है, देन दैट मोशन इज टर्म्ड एज द प्रिसेशनल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रिसेशनल मोशन। व्हाट इज द प्रिसेशन हियर? वी विल डिस्कस डायग्रामेटिकली द प्रिसेशन, लार्मर प्रिसेशन, दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। particularly I have taken here the spin states as the -12 and +12। इसका मतलब हाइड्रोजन की बात की गई है, बाकी जो वो डिस्कस नहीं किया है, विच कंटेन द सिंगल प्रोटॉन। सो स्पिन विल बी +12 और -12। तो अगर वो अलाइंड करता है तो आएगा +12, अगर वो अपोजिंग में रहता है तो क्या रहेगा वो -12, सॉरी -12 और +12। तो दो स्पिन स्टेट आपके पास जो वो आ गई। When the nuclei it is present in the magnetic field, तो न्यूक्लियस जो है उसका जो वेक्टर है, कौन सा? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, वो हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ही होता है। मींस कभी भी उस डायरेक्शन में नहीं होगा कि जिस डायरेक्शन में वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट द मैग्नेटिज्म इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन मोशन as well as depending upon the spin axis as well as the direction it is there because of the angular momentum। जो उसका एंगुलर मोमेंटम है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन की वजह से वो कभी भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो वो नहीं होगा। जैसे ही आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी तरफ जो वो अलाइन करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? अलाइन करने की कोशिश करेगा। अगर वो अलाइन होता है तो अलाइन करते वक्त उसके ऊपर जो वो एक टॉर्क एक्ट करता है, वो टॉर्क जो है दैट विल सेट द एक्सिस ऑफ दैट स्पिनिंग न्यूक्लियाई इन ए रोटेशनल मोशन। किसमें सेट कर देगा वो? रोटेशनल मोशन में। तो जैसे ही वो रोटेट करेगा तो वाई रोटेटिंग इट विल मेक ए कोन। कोन किस लिए? क्योंकि पहले ये जो स्टेट है, जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन में वो जो है वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मान लो एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब उसकी एक्सिस रोटेट होगी देन इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द अपर साइड। जैसे यहां साउथ और नॉर्थ है, तो अगर ये फ्लैट भी आती है, नेक्स्ट में आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वो एक्सिस जो वो ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगी। अगर वो अपोजिंग में है तो वो नीचे की तरफ जो वो इंक्लाइंड हो जाएगी। So either it is inclined toward the aligned direction or toward the opposing direction। तो जो बॉडी है स्पिनिंग बॉडी, that will spin as well as that will rotate because of this magnetic field। So that we can understand with the help of video। अगर बनता है मेरे से तो इससे बाद में मैं आपको जो वीडियो के हेल्प से बताऊंगा कि किस तरह से जो वो प्रिसेशनल मोशन जो वो पॉसिबल है। So see here that is the spinning body here। तो that is spinning around the one axis। तो मैंने सिंपल हम जो एक्सिस शो करते हैं वो एक्स और वाई और जेड एक्सिस शो करते हैं।
तो मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो होगा वो उसके एक्स और वाई और जेड एक्सिस के अलोंग तो हो ही नहीं सकता है। अगर हम जो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा उसके क्या होगा, अक्रॉस होगा। अक्रॉस इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन जो है, दैट इज डिफरेंट एंड इट इज असाइंड और इट इज देयर बिकॉज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। When you will place this inside a magnetic field, तो ये दो मैंने यहां पर नीचे साउथ और नॉर्थ पोल यहां शो किए हुए हैं, सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर। देन सी हियर, दिस इज द टिल्ट ऑफ द एक्सिस, दिस इज द अलाइनिंग। पहले एक्सिस इसकी ये थी, आई थिंक आपको विजुअल है कि ये एक्सिस है इसकी, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को स्विच करोगे देन दैट एक्सिस इज इंक्लाइन टुवर्ड द अपर डायरेक्शन। पहले एक्सिस जो है वो नीचे की तरफ है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप स्विच ऑन करोगे देन इट इज इंक्लाइन टुवर्ड द साउथ एंड नॉर्थ। तो इसकी मूवमेंट हो रही है, इसकी एक्सिस की क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है इन द सेम डायरेक्शन। ये एक्सिस जो है वो अपोजिंग वाली है और जब आप इसको जो है वो या तो अलाइंड हो रही है या क्या हो रही है, ये अपोज हो रही है। और ये जो स्पिनिंग बॉडी है दैट इज सेट इनटू द रोटेशनल मोशन बिकॉज ऑफ द दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम बोलेंगे प्रिसेशनल मोशन। क्या बोलेंगे इसको, प्रिसेशनल मोशन। वैसे तो इसको बुक में देखकर थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या प्रिसेशनल मोशन है, लेकिन मैंने एक होममेड वीडियो बनाया आपके लिए प्रिसेशनल मोशन का, वो इसके साइड वाइज मैं टैग कर दूंगा यहां से, तो उस वीडियो की हेल्प से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो that what is the precessional motion. Remaining portion we will discuss next time.